हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डीएनबीएस नॉलेज हब में। आईपीओ की इस बारिश में जो नेक्स्ट आईपीओ की हम बात करने जा रहे हैं वो है कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस आईपीओ के बारे में। फ्रेंड्स, ये आईपीओ ओपन हो रहा है 4 अगस्त 2021 को और इस आईपीओ को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है 6 अगस्त 2021। इश्यू टाइप जो है वो होगा बुक बिल्ट आईपीओ। फेस वैल्यू जो है वो होगी 5 पर शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ है वो है 933 से 954 रुपीस पर शेयर। मार्केट लॉट जो है वो होंगे 15 शेयर्स के। मिनिमम एप्लीकेशन आप कर सकते हो एक लॉट का, विच विल कंसिस्ट 15 शेयर्स एंड विच विल अमाउंट टू 14,310 रुपीज। मैक्सिमम एप्लीकेशन आप कर सकते हो 13 लॉट्स की, जिसके अंदर 195 शेयर्स रहेंगे एंड विल अमाउंट टू 1,86,030 रुपीज। इश्यू साइज जो है वो है 1,213.33 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इश्यू जो होगा वो होगा 400 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल जो है वो है 85,25,520 शेयर्स विच विल अमाउंट ऑन approx basis 813.33 crores। अब फ्रेंड्स जानते हैं कंपनी के बारे में। Company was originally incorporated as Krishna Diagnostics Private Limited at Pune, Maharashtra as a private limited company। कंपनी का नाम 2015 में ड्यू टू सम न्यूमरोलॉजिकल रीजंस चेंज किया गया टू कृष्णा डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर सिर्फ एक ए जो है वो ऐड किया गया था। कंपनी ने अपनी जर्नी बिगिन की थी विथ एम टू मेक क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज which will be accessible and affordable to the last mile patient even in the remotest of the location। Company's model emphasizes on the needs and convenience of the patients who require the services। Krishna Diagnostics Limited is one of the largest differentiated diagnostic service provider in India। It provides a range of technology-enabled diagnostic services such as imaging, which include radiology, pathology, clinical laboratory, and teleradiology services to public and private hospitals, medical colleges, and community health centers at Pan India। Company focus on the public-private partnership diagnostics segment and have the largest presence in the diagnostic triple P segment. It operates an extensive network of diagnostic centers across India, and as of 30th June 2021, company has operated 1,823 diagnostic centers offering both radiology and pathology services in 13 states across India। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। तो इट हैज़ यूनिक एंड स्केल्ड डायग्नोस्टिक कंपनी। इट हैज़ a strong brand quality, extensive footprint across India with robust infrastructure, business model with robust revenue visibility, well positioned to capitalize on healthcare spending across public and private sectors, scalable and agile business model with efficient cost structure, consistent track record of financial performance. It has the ability to maintain cost competitiveness through operating leverage, experienced promoters and management team supported by its strong employee base। अब फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी की स्ट्रेटेजीज के बारे में। कंपनी की स्ट्रेटेजी के अंदर इंक्लूड होता है इट कंटिन्यूज टू एक्सपांड प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया, expand its offering of diagnostic services with a focus on specialized diagnostics, grow its digital footprints, maintain high social impact, continue to improve profitability and efficiency, expand its business and geographical footprints through opportunistic acquisitions। और फ्रेंड्स हमने देखा कि कंपनी जो है वो ट्रिपल पी के ऊपर काफी काम कर रही है। तो भी ट्रिपल पी है क्या और किस तरीके से कंपनी इसको ऑपरेट करती है। कंपनी जो है वो एक
पब्लिक हेल्थ एजेंसीज के साथ एक अग्रीमेंट के अंदर एंटर होती है टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट ऑन साइट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एट एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज. Under these arrangements, company establish and manage in-hospital diagnostic centers to conduct on-site testing. Pursuant to the terms of contractual agreements, the medical facility typically provides rent-free space and access to its utilities and other infrastructure, and company provides all the diagnostic equipment and are responsible for all costs relating to personnel, transportation of samples and maintenance of laboratory. As of 31st March 2019, 2020 and 2021, and as of 30th June 2021, it has operated 1,222, 1,311, 1,783 and 1,797 diagnostic centers pursuant to its PPP contracts respectively. अब फ्रेंड्स देखते हैं कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर. ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर तीन प्रकार के शेयर कैपिटल हम देख सकते हैं, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर दो सीरीज है, सीरीज ए एंड सीरीज बी. इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है 4,24,00,000 48,000 number of shares which amounts to 21,22,40,000. सीरीज एक प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो वो है 40,61,914 नंबर ऑफ शेयर्स. वही उनकी हम एग्रीगेट वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो वो स्टैंड कर रहा है 49,96,15,422. सीरीज सी की अगर बात करते हैं ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो वो है 30,38,886 नंबर ऑफ शेयर्स. वही अगर उनकी एग्रीगेट वैल्यू देखते हैं तो वो स्टैंड कर रही है 75,97,21,500 रुपीज. इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल की अगर हम बात करते हैं इस ऑफर से पहले तो वो स्टैंड कर रहे हैं 2,71,91,528 नंबर ऑफ शेयर्स और इनकी एग्रीगेट वैल्यू अगर हम देखते हैं तो वो स्टैंड कर रही है 13,59,57,614 40. सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर हम देखते हैं तो वो स्टैंड कर रहा है 142,15,20,330 पे. अब फ्रेंड्स देखते हैं प्री ऑफर होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. प्रमोटर्स जो हैं इनकी होल्डिंग रह रही है 29.53% पे. प्रमोटर ग्रुप जिसके अंदर नाम है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स मुंबई प्राइवेट लिमिटेड का वो स्टैंड कर रहा है 2.09% पे. सेलिंग शेयर होल्डर्स जो है इनके अंदर नाम आ रहा है फी कैपिटल, इनकी होल्डिंग है 23.42% की. किटारा इनकी है 16.38% की. सोमरसेट जो है उनकी होल्डिंग है 16.38% की. लोटस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस की होल्डिंग्स जो है वो है 0.08% की. और फ्रेंड्स देखते हैं इस आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, इनसे जो प्रोसीड रिसीव होगा कंपनी उनको यूटिलाइज किस तरीके से करेगी. फ्रेंड्स ऑफर फॉर सेल के अंदर जो भी कंपनी प्रोसीड जो रिसीव करेगी वो तो पूरा का पूरा सेलिंग शेयर होल्डर का ही मिल जाएगा, दैट इज पी कैपिटल जो कि अपने 16 लाख नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए हैं. किटारा विच हैज ऑफर्ड 33,40,713 नंबर ऑफ शेयर्स. सोमरसेट जिन्होंने 35,63,427 नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए हैं. और लोटस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस उन्होंने ऑफर किया 21,380 नंबर ऑफ शेयर्स. अब जो फ्रेश इश्यू रिसीव होगा कंपनी को, फ्रेश इश्यू पे जो प्रोसीड रिसीव होंगे कंपनी को वो किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होंगे. तो फ्रेंड्स पर्पस टू फाइनेंस अ कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग डायग्नोस्टिक सेंटर्स ऑफ पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र. रीपेमेंट और part payment in full or in part of borrowings from bank and other lenders availed by our company and for general corporate purposes. तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. टोटल एसेट्स जो है इन फाइनेंशियल ईयर 2021 स्टैंड्स एट 6,045.30 which was
6,299.82 in financial year 2019-20 and 5,289.85 in financial year 2018-19. नॉन करंट एसेट्स की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो है 3,563.92 इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एंड 4,163.51 इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड 3,403.98 इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19. करंट एसेट्स अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स तो वो स्टैंड कर रहे हैं एट 2,481.38 इन फाइनेंशियल ईयर 2020-2091, 2,136.31 in financial year 2019-20 and 1,885.87 in 2018-19. यही बात अगर हम टोटल इक्विटीज की करते हैं फ्रेंड्स तो वो स्टैंड कर रहे हैं 2,318.65 इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और FY 2019-20 और 2018-19 के अंदर टोटल इक्विटीज जो है वो नेगेटिव जा रही है बाय 1969.77 एंड 849.21. बोरोइंग्स की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो नॉन करंट बोरोइंग्स जो है वो स्टैंड कर रहा है एट 1679.54 इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 1227.13 इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड 920.23 इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19. ये हम करंट बोरोइंग्स की अगर हम बात करते हैं तो वो स्टैंड कर रहा है 347.44 इन 2020-21, 922.80 in 2019-20 and 539.57 in 2018-19. फ्रेंड्स कंटीजेंट लायबिलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने बैंक गारंटी दी है ऑफ 36.50 मिलियंस जो कि तीनों साल के अंदर मेंटेन रह रही है और इसको कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया है. फ्रेंड्स अब टोटल रेवेन्यू अगर हम देखते हैं तो वो स्टैंड कर रहा है एट 3,964.56 millions in financial year 2020-21, which was 2,584.27 in 2019-20 and 2,092.35 in 2018-19. अगर हम टोटल इनकम देखते हैं फ्रेंड्स तो वो है 6,614.76 in 2020-21, which was 2,713.79 in 2019-20 and 2,143.15 in 2018-19. प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखते हैं फ्रेंड्स तो वो है 1,105.23 in financial year 2020-21. Earlier there was loss in 2 years, that is 463.81 and 196.69. अगर हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो स्टैंड कर रही है एट 1,849.01 और यही इनकम माइनस में जा रही है इन फाइनेंशियल 1920 by 1,119.99 and 579.90 in 2018-19. अब फ्रेंड्स देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. 2020-21 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो जनरेट जो हो रही है वो हो रही है 1025.58. यही थी 378.09 इन 2019-20 एंड 582.66 इन 18-19. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो तीनों साल के अंदर नेगेटिव जा रही है, दैट इज 611.39 इन 2020-21, 766.48 इन 2019-20 and 1992.52 इन 18-19. अब रीजन क्या है तो यही है कि कंपनी ने कुछ प्रॉपर्टी परचेज की है, कुछ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स परचेज किए होंगे या कुछ इंटेंजिबल एसेट्स परचेज किए हैं और इन्वेस्टमेंट इन बैंक डिपॉजिट जो है वो किया है. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अगर हम देखते हैं तो वो जनरेट हो रहा है एट 308.40 इन 2020-21, 577 in 2019-20 and 1242.71 in 2018-19. अब फ्रेंड्स कुछ रेशियोज जो हम यहाँ पे देखते हैं. बेसिक ईपीएस prior to conversion of preference shares. During the period, conversion must have taken place. So, basic EPS जो था वो था 320.72 in 2020-21
and negative 216.94 in financial year 2019-20 and negative 120.28 in financial year 2018-19. It is prior to conversion of preferences. यही अगर हम पोस्ट कन्वर्जन देखते हैं फ्रेंड्स, तो बेसिक ईपीएस जो है वो रहता है 71.86 पर शेयर इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, negative 43.53 per share in 2019-20 and negative 24.13 in 2018-19. Diluted EPS जो है वो चेंज हो रहा है at 12.25 per share in 2020-21, negative 43.53 in 2019-20 and 24.13 negative in 2018-19. रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो वो स्टैंड कर रहा है एट 79.76% इन 2020-21, 56.83% नेगेटिव इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड 63.37% नेगेटिव इन 2018-19. नेट एसेट वैल्यू अगर हम बात करते हैं बिफोर द कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो स्टैंड कर रहा है 356.99 एंड पोस्ट कन्वर्जन जो है वो रह रहा है 85.27 इन फाइनेंशियल 2020-21. इट इज minus 381.51 in financial 2019-20 एंड पोस्ट कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो हो रहा है minus 76.56. अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो प्रायर टू कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो रह रहा है 164.48 नेगेटिव एंड पोस्ट दिस कन्वर्जन ये हो जाता है -33 पर शेयर. फ्रेंड्स, इसी के साथ हम हमारा फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस को कंक्लूड कर रहे हैं. अब बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए. तो फ्रेंड्स, अगर फाइनेंशियल्स देखें तो वो काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और कंपनी ऑब्जेक्ट भी एक्सपेंशन का है. तो इट्स माय पर्सनल व्यू कि अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स इसको आपको लिस्टिंग गेन तो कंफर्म मिलेगा और लिस्टिंग गेन जो है वो भी काफ़ी 40 to 50% तक का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकता है. वी होप फ्रेंड आपको ये वीडियो जो है वो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. और भी वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करें. Thank you so much for listening to us. Have a great day.